Can you hear me? And is the screen visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, तो अब इसको, यार ये कुछ पेन गड़बड़ हो गया एक्चुअली, आई थिंक अपने आप ही ड्रॉ कर रहा है कुछ, चलो डजंट मैटर, ऐसा करते हैं, हाँ इधर से स्टार्ट करते हैं. सो नाउ वी आर लुकिंग एट डेटा. लास्ट टाइम मैंने डेटा दिखाया था इन द यूसीआई रिपोजिटरी. सो फॉर एवरी डेटा दैट यू हैव अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन द डेटा. अब डेटा हमारे पास किस तरह का है, हमारे पास कुछ होता है क्वालिटेटिव डेटा या कैटेगोरिकल डेटा. क्वालिटेटिव जो कि हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे आई कैन से दैट इट इज गुड, इट इज बैड, अगली, ब्यूटिफुल, ये सब क्वालिटेटिव है. So you are kind of associating the values according to a category, but there's no number assigned to it, right? And otherwise they are scaled values, जिसमें हमारा Neuer form चलता है. Neuer is generally, इसका full form होता है nominal value, ordinal, interval and ratio. So जहां पे भी scales होते हैं, जहां पे हम measure कर सकते हैं, you have Neuer form. So we will look at these variables, what kind of variables we have. So data in its original form, just like a list of numbers, names, letters, colors, is known as raw data. We already know what raw data is. And when we organize this data, otherwise क्या होता है, ये meaningless data है हमारे लिए. But when we organize it for some information, then we can draw some inferences out of that data. Now data के basic दो जो types होते हैं, those are qualitative data and quantitative data. So qualitative and quantitative में जैसे अगर हमारे पास, अगर हम classify करें, quantitative में weight आ जाएगा, length, anything that we can measure is quantitative. Time, number of questions, such things which can be measured are quantitative data. फिर हो गया categorical data, model of a car. तो कई तरह के models हैं, category है, gender, yes, no, this is a category, pass, fail. अच्छा, अगर numbers है, what about zip codes? Is zip code a quantitative or a categorical variable? है numerical, but it is a category. हमें पता है अपने एरिया का हमारा एक पर्टिकुलर जिप कोड होता है, उस नंबर का मीनिंग उतना ही होता है, उसके अलावा उसका कोई मीनिंग नहीं है. फिर हमारे फोन नंबर्स, बैंक अकाउंट्स, these are numeric, but it does not mean that, I can't take average of phone numbers to find out phone number of another person, right? So similarly, such values which are basically numbers, but they do not have a meaning associated with them as numbers, those are categorical values. So ये सब भी categorical हो गए. So अच्छा, you have to remember stats का, you have done a course. So generally हम लोग क्या करते हैं, एक population होती है हमारे पास. So this is a large amount of people which a group is being studied. Suppose हम लोग census करते हैं, right? So census में क्या होता है, we take a partial information of a particular population. Population का तो हम लोग कैसे होता है, जब हम लोग voting करते हैं तो population का हमारे पास outcome आता है. But exit polls होते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, we take a sample of that population and try to estimate कि क्या outcome होगा. So that is known as, and basically population is the entire thing, and एक sample होता है which is taken out of the population, but you have to be sure that the population का जो sampling कर रहे हो, it represents every category of the population properly. So suppose I take a sample and I take only maybe a particular category कि हमने सिर्फ हिंदू से sample लिया, so I will not be able to assess कि किस तरह का हमारा exit poll होगा, because it is a biased kind of a sample that we have taken. So ये सब हम लोग ने already पढ़ा हुआ है in stats. I will not get into the details of this. Sampling error होगा, ये सब होगा. Now nominal ordinal वाले में ये it is given in the book also that I have shown you. एक book हम मैंने share कर रखी है. Nominal, but you can basically briefly understand. So nominal is when you have values of variables are names. So nominal है हमारा. So जैसे हमारा
कोडिंग ऑफ कंट्रीज ऑन इंटरनेट, कलर्स ऑफ अ शर्ट इन एन इन्वेंट्री. सो नॉमिनल क्या होगा? रेड, ब्लू, ग्रीन. मेरे पास ये 3 कलर्स हैं. सो दिस इज नॉमिनल. नेम्स species के, these are nominal. So wherever there's a name associated, it is a nominal measurement. Can I take mean of such values? I can't take mean of such values because these are not, they are nominal measurements, but I cannot take a mean of red, green, blue because इनका नाम है. क्या यूज करेंगे हम लोग? मोड यूज करेंगे. मीन, मीडियन, मोड सबको क्लियर है ना स्टैट्स में? व्हाट इज मीन? मैम एवरेज. करेक्ट. मीन, मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू जो होती है हमारे डेटा की. So you take an ascending order and take the middle value of the जो आपका ascending order में number of elements के हिसाब से middle value you take. That's your median. Then you have mode. Mode is what? Highest frequency. Highest frequency. So mode is suitable for a nominal measurement. That's correct, right? I want to find out the maximum number of colors. कौन सी शर्ट मेरे पास इन्वेंट्री में सबसे ज्यादा है. So that is a mode value. अच्छा, नॉमिनल वैल्यू हम लोग क्या है? हम लोग चेंज भी कर सकते हैं. सपोज मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. सो आई वांट टू से हॉट, कोल्ड. सो आई कैन कन्वर्ट. मैं कह सकती हूँ कि हॉट इज एनीथिंग अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज हॉट, अगर वेदर की बात करें, राइट? सो वी कैन कन्वर्ट स्लो, फास्ट. हम लोग इसको डाइक्रोटमाइजेशन बोलते हैं, जिसमें बेसिकली वी आर कन्वर्टिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू अ नॉमिनल मेजरमेंट. Right? Tall, short, we can do that. So this is nominal measurements में we can convert the numerical values also. फिर ordinal measurement. Ordinal में क्या हो गया? Ranking आ गई. So first कौन है, second कौन है. इसमें क्या important चीज है? You have to remember that first and second का हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो difference है first और second में, वही second और third में difference होगा. जैसे मार्क्स लेते हो, right? So I say that first CGPI is maybe 10. Maybe the second one has 9.1. The third may be 9 itself, right? So this is just telling you the ranking. It is not telling you the interval measurement. You have to remember that. So इस तरह से हमारा ordinal measurement is basically your orders, the ranking you can say. That's your ordinal. इसमें भी child, teen, youth, adult, senile, age से हम निकाल सकते हैं. So you can convert your your numerical values into ordinal measurement again. That is possible. Interval measurement. Interval में क्या हो गया कि हमारा difference की बात कर रहे हैं. Distance between two values has a specific meaning. इसमें क्या था? First और second की difference की value का कोई मतलब नहीं था, बस rank से मतलब है हमें. इधर क्या है? इंटरवल मेजरमेंट में वी आर वेरी श्योर कि अगर हम 10 डिग्रीज अगर हम बोल रहे हैं, अ चेंज ऑफ 1 डिग्री इज द सेम इफ द टेम्परेचर गोज फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 1 डिग्रीज, या फिर 40 से 41 जा रहा है, 1 डिग्री का उतना ही मीनिंग है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन इंटरवल मेजरमेंट. जो जनरली हम लोग करते हैं एज का है, सो इट इज एन इंटरवल मेजरमेंट बिकॉज एक ईयर का डिफरेंस जो है हमेशा उतना ही रहेगा. 40 to 41, 50 to 51, 0 to 1, it's always going to be an interval measurement. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल सारी वैल्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, negation, multiplication, because it is a proper numerical value. Can it be transformed to nominal or ordinal scale? Yes, you can convert, but वही बात है, loss of information होएगा. जैसे मैंने कह दिया hot, cold, pleasant, weather is pleasant, weather is hot, weather is cold, इस तरह से तो हमें इंफॉर्मेशन बहुत एक रेंज की मिलेगी. ठीक है, ये हो गया इंटरवल. रेशियो इज द जनरल डेटा जो हम लोग यूज करते हैं, वो सब रेशियो में आता है. तो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दैट. नोयर फॉर्म है, बाकी इसकी डिटेल्स पढ़ लेना. ये एक्चुअली इसलिए बोला गया है कि इसमें हमें जनरली कौन सी वैल्यूज यूज करनी है, बट दे आर वेरी, I mean, you know, it's very obvious once you know stats and everything. ये बहुत obviously आ जाता है, but for completion sake मैं इसको I've just gone through it. अब हम लोग इस पे actually what I wanted is कि इस वाले कोर्स में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस करें on practical knowledge, because जितना तुम लोग को practically सीखोगे उतना अच्छा रहेगा. So इसलिए let's go to the lab part. सबने ये डाउनलोड कर लिया है बाइक डेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसको देखो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट
पार्ट, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डेटा को वी नीड टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। तो यूजर आईडी हमारा एक, हमारे पास अब हम लोग ये क्या कर रहे हैं, बाइक डेटा हमें ये बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो पर्टिकुलरली, स्टूडेंट्स क्या, कितने लोग हैं जो बाइक को यूज करते हैं। तो यूजर आईडी एक पर्टिकुलर वन पर्सन हैज एन एसोसिएटेड यूजर आईडी, उसकी एज हो गई, हर एक यूजर की अपनी एज हो गई, जेंडर हो गया उसका मेल फीमेल वाला, whether the student, whether the person is a student or not, वो 1-0 हो गया। If it is 1, it means this person is a student. If it is 0, that person is not a student. So it is a binary field just telling you whether the person is a student or not. Employed भी एक binary field है, 1 means the person is employed, 0 means the person is not employed. Cycling frequency, it is a categorical value. अच्छा, मेरे को सारी सबकी बताना क्या क्या होता है, ये कौन कौन से आईडी क्या क्या हुआ, किस तरह का डेटा है ये, यूनिक डेटा रहेगा सबके लिए। तो यूजर आईडी का कोई एक्चुअली हमारा उसमें मीनिंग नहीं होगा, हम मॉडलिंग करेंगे तो हमारे कोई मीनिंग नहीं होगा, इट इज जस्ट अ नॉमिनल वैल्यू एक तरह से मान सकते हो, है ना। नाम दे दिया, नंबर दे दिया, हम इसमें नाम दे देते, हमने आईडी दे दी। एज किस तरह की वैल्यू हो गई, न्यूमेरिकल, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, बट कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें इंटीजर्स यूज करे हुए हैं हमने, करेक्ट। देन जेंडर क्या हो गई, जेंडर इज अ कैटेगोरिकल वैल्यू, 2 कैटेगरीज है मेल फीमेल, करेक्ट। यस मैम। स्टूडेंट क्या हो गया, कैटेगरिकल, एम्प्लॉयड कैटेगोरिकल, करेक्ट। साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी देखो, इसमें फिर से कैटेगरी है, क्योंकि कुछ डेली है, लेस देन वंस अ वीक, सेवरल टाइम्स पर वीक, इस तरह से हमारे पास 3 कैटेगरीज डिफाइंड है, राइट। फिर हमारे पास आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, इज इट ओके, यस मैम। कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, टाइम कितना ले रहा है, सो दीज आर मे बी इन मिनट्स, डिस्टेंस में भी ये लोग, मेरे ख्याल से हम लोग किलोमीटर्स यूज करते हैं, ये मे बी माइल्स का डेटा होगा। एंड स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिकली कितना इन्होंने एक कोई पर्टिकुलर यूनिट में डिस्टेंस स्पीड निकाल रखी होगी। इज इट ओके, सो यू अंडरस्टूड दिस डेटा। तो Yes, कोई ma'am. भी डेटा पहले जब एनालाइज करा करो, पहले उसके एक एक एट्रीब्यूट को समझ लिया करो कि क्या है, उसका मीनिंग क्या है। नाउ लेट्स गो ऑन टू दिस एक्सरसाइज, ये मैंने शेयर करा हुआ है, सो इसको कर सकते हो, अपने आप भी ट्राई करना करने की। नाउ सपोज व्हाट इज द एज ऑफ द 7th राइडर, अब मेरे को ये निकालना है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये काम करो सब लोग, ये फाइल में नहीं शेयर कर रही हूं, अपने आप लिखो, ये सब कोड लिखते जाओ और करते जाओ। सो यू विल इंपोर्ट numpy as np, pandas as pd, स्टैंडर्ड है हमारा, numpy pandas हमें चाहिए है, matplotlib चाहिए है, तो उसमें pyplot हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं as plt। फिर उसके बाद ये matplotlib इनलाइन क्या करता है, what does it do, बताओ क्या करता है, anybody? So you will have these plots made in line, अलग से नहीं बनेगा, कोई एक पॉपअप नहीं आएगा, इसी में अपने प्लॉट्स दिख जाएंगे। पहले हम लोग के कोड वोड आता था, दे हैव रिमूव दैट कोड, पहले याद है तुम लोग को एक कोड कॉपी करना पड़ता था हम लोग को लोड करने के लिए। यस मैम। Now it has been removed, it automatically just connects your drive, mount हो गई। Now pd.read csv, because we have a csv file, we will say pd, this is pandas का हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं, and we are giving the entire path, you already know, my drive तक तो यही है, फिर मैंने एक फोल्डर बना रखा है जहां पे मैंने ये लोड करा है csv। सो ऐसे ही अपने अपने ड्राइव्स में करो and load this as
any whatever name you want. Bike है तो मैंने B कर दिया है. Whatever name you want, इसे first load your files. Do that parallelly so that I know you people are doing it. कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन शेयर करके दिखा भी सकते हो. हो गया सबका? Yes or no? बेटा अगर क्लास लेने का कोई सेंस ही नहीं, अगर मैम कर रहे हैं. करो तो बताओ. Done? Now we will just look at this data set. अभी हमने B करा तो you can see this entire data set is now available here as a data frame. How many values do you have? You have 121 rows and 9 columns. You can see over here 121 data sets है, हमारे पास data values है, and कितने columns है? 9 columns है. सबका आ गया? बेटा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes, ma'am. Okay. Now देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एज ऑफ द सेवेंथ राइडर? अब सेवेंथ राइडर हमें चाहिए है तो हमें बेसिकली क्या करना है? एक iLoc होता है लोकेशन देने के लिए. यू पीपल ऑलरेडी नो बिकॉज यू हैव डन pandas यूज करा हुआ है. तो ये डेटा फ्रेम आ गया हमारे पास. Now in the data frame, if I want a particular location, you know that the first row starts with 0. तो seventh row क्या होगा? 6 से होगा. So b dot I location and 6 मैंने लिखा तो मेरे पास सारी उसकी डिटेल्स आ गई, सारे पैरामीटर्स आ गए. हमें उसका एज चाहिए तो हम एज देख के and I will write 45 here. So that's my answer, 45. Yes, the correct answer is 45. You can see here. How many of the first 10 riders of the data set ride daily? अब 10 data set का हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? बस हमने इसको हम मैन्युअली भी कर सकते हैं. तो 10 data set हमने शुरू के 10 values ले ली. B head 10. I'll be able to see first 10 values. और इसमें daily कितने लोग हैं? 1, 2, 3. So my answer will be 3. Answer is 3. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, what is the speed of the first female who cycles less than 1 time per month? अब इसके लिए हमें क्या करना है? हमें एक तो फीमेल चाहिए है, फर्स्ट फीमेल. तो हम लोग क्या करेंगे? आगे हमारे पास आगे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें फीमेल, मेल, स्टूडेंट. हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पूरा डेटा सेट बना लेते हैं जिसमें बेसिकली फीमेल सिर्फ आ जाए. सिर्फ फीमेल्स लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यू ऑलरेडी नो, हम लोग ने करा बी जेंडर. अब हमें किससे पता चल रहा है? बी में हमारा जो जेंडर वाला कॉलम है. सो हाउ कैन आई से दैट बी वाला जेंडर वाला? बी एंड देन आई गिव स्क्वायर ब्रैकेट्स जेंडर इक्वल्स एफ. आई कैन सी दैट इन्वर्टेड कॉमर्स में दे दिया. अगर हम सिर्फ ये करते हैं, पहले ये देखो, बी जेंडर इक्वल्स एफ. देखो इससे क्या होता है? हमारे पास एक बस
इसका आउटपुट क्या है? आउटपुट इज अ ट्रू एंड फॉल्स वाला हमारा एक आ जाएगा, एक रो, पूरा कॉलम, सॉरी. सो हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ जाता है? आई गेट दिस ट्रू एंड फॉल्स आउट ऑफ दिस. कैन यू सी दिस? नाउ टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट दिस डेटा फ्रेम, हमें क्या करना है? बी में फिर से ये वैल्यू लगा देंगे. तो अब हमारे पास क्या होगा? जितनी ट्रू वैल्यूज होंगी वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी. सो आउट ऑफ दिस बी, नाउ इफ आई पुट इट अक्रॉस inside this value, I will be able to extract only the females out of this particular data frame. So देखो, अब इसमें देखोगे जेंडर तो only females are present. Can you see this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. So अब हमने ये एक extract कर लिया. अब हमसे क्या पूछा था इन्होंने? The question was, what is the speed of the first female who cycles less than 1 time per minute, per day? तो cycles 1 less than, sorry क्या था, 1 time per month. तो frequency देखेंगे less than a 1 month. और इसका हमें क्या पूछा था इन्होंने? स्पीड. सो स्पीड हमें देखो less than 1 once a month, फर्स्ट वैल्यू यही आ गई और 8.10 is the speed. So my answer will be 8.10 over here. Is it okay? Yes, ma'am. बहुत तरीके हो सकते हैं कोई भी आंसर करने के लिए. आई एम जस्ट गिविंग यू व्हाटएवर आई थॉट वाज ओके. ठीक है, बाकी अपनी तरफ से कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है. कैसे भी, देयर लॉट्स ऑफ वेज टू अप्रोच अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यू ऑलरेडी नो दैट. अब हमें क्या करना है? अब बस ये लोग वेरिएबल्स पूछ रहे हैं. व्हाट टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज अ स्टूडेंट? कौन सा है बताओ भाई? स्टूडेंट क्या है? वी ऑलरेडी नो, कैटेगोरिकल है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? ये भी कैटेगोरिकल है. डिस्टेंस क्या है? न्यूमेरिकल है. वी हैड ऑलरेडी सीन दिस. इज इट करेक्ट? इसमें कहीं प्रॉब्लम किसी को? नो मैम. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, fine. So now in this lab we will be creating a new data set that includes just the student riders. ये अपने आप करो चलो. अब हमें सिर्फ स्टूडेंट राइडर्स चाहिए. सो करेक्ट टर्मिनोलॉजी फॉर दिस न्यू डेटा सेट. डेटा सेट क्या है, कैसा होगा? अगर हमें एक डेटा सेट बनाना है स्टूडेंट राइडर्स का, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा कि नहीं? Yes or no? Yes, ma'am. यस मैम. It's a data Yes, frame. ma'am. Very simple questions I have kept so that you people understand what we are doing. Now, how many of the cyclists were students? How often did they ride? And what was the average distance they rode? तो पहले तो ये मेरे को बताओ, how many students are there in the data set? अब ये अपने आप करो, try to find out. मेरे को बताओ लिख के कि क्या होगा इसका. How will you make a data frame for students? I'll give you. किसी का हुआ बेटा? Anybody been able to do it? किसी ने लिखा हो तो इधर मैसेज में डालो. Write down your code if you have written. स्टूडेंट्स का निकालो भाई. क्या हो गया?
What is the confusion? फिर स्टूडेंट के लिए भाई अब ठीक है मैं ही बता देती हूँ, बड़ा सिंपल था ये तो। बी स्टूडेंट इक्वल्स इक्वल्स 1 जैसे हम लोग ने पहले करा था, और बस उसको बी से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और फिर स्टूडेंट्स प्रिंट कर लो। So student. So you can see only the students are present. So what was the question? Question was how many students are there in the data set? कैसे निकालोगे? बताओ। Students.describe says have 14 rows and 9 columns. How many students are there? 14. मैम लेंथ का भी यूज कर सकते हैं? लेंथ कैसे यूज करोगे बेटा, ये तो डेटा फ्रेम है। मैम अगर लेंथ स्टूडेंट करके लिख रहे हैं तो मैम 14 आंसर आ रहा है इसमें। लेंथ ऑफ व्हाट? मैम स्टूडेंट जो हमने अभी फाइंड किया है। अच्छा एक मिनट रुको, स्टूडेंट डॉट लेंथ। नो मैम लेंथ ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट। हाँ वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। यस हाँ वो हो जाएगा, ठीक है। डेटा फ्रेम की लेंथ हाँ वैसे निकल आएगा, बट जनरली करेक्ट और तरीका यही होगा। तो कितने Yes, स्टूडेंट्स ma'am. हो गए? 14। स्टूडेंट डॉट डिस्क्राइब से आ गया। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंस वी ओनली वांट टू वर्क विद द स्टूडेंट डेटा, लेट्स क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम। ये हम लोग ने निकाल लिया है ना, तो ये हम लोग ने डेटा फ्रेम नया निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास। फिर we also want to know how far the students travel on average. अब इसका वेक्टर बनाओ तुम लोग। कैसे बनाओगे? डिस्टेंस सिर्फ चाहिए। लेट्स क्रिएट अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज अ वेक्टर? सिंगल कॉलम। सो एक वेक्टर बनाना है डिस्टेंसेस का, स्टूडेंट्स वाला डिस्टेंसेस का। सो बेसिकली आउट ऑफ दिस जो स्टूडेंट वाला डेटा फ्रेम है उसमें से मेरे को ये वेक्टर चाहिए सिर्फ डिस्टेंस वाला। कैसे बनाओगे? बेटा करते चलो, ये सब थोड़ा थोड़ा करोगे तभी आएगा। एंड दिस इज वन फील्ड वेयर यू एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ स्कोप इन द इंडस्ट्री आल्सो। एनीबडी? सो वी विल से जस्ट सिंपल एस डी स्टूडेंट एंड डिस्टेंस। अगर हमने ऐसे करा तो एक वेक्टर बन जाएगा। देखो अगर इसको देखना चाहोगे टाइप क्या है इसका, इट इज अ सीरीज, सो यू नो इट्स अ वेक्टर। यस और नो? क्लियर है? यस मैम। अब इसके बाद इन्होंने क्या पूछा था? ये तो हो गया इसका करेक्ट।
ओके सीरीज हो गया, ये इसका ये आ गया, सीरीज चाहिए होगा. लेट्स फाइंड द एवरेज डिस्टेंस. तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? मीन निकालेंगे. SD_mean. एक और ऐसे भी हो सकता है, मीन SD. सॉरी, NP.mean होता है ना, NP. तो देखो सेम वैल्यूज आएंगी. NP मीन, नमपाई का अगर हम मीन यूज करें, बिकॉज एरे है तो काम करेगा, सीरीज है, या फिर हमने SD का मीन निकालेंगे तो उससे भी कर सकते हैं. यू विल गेट द सेम वैल्यूज. इज इट ओके? सो मीन वैल्यू Yes, sir. अगर इधर लिखेंगे तो इधर आ गई, राउंडेड टू 2 वैल्यूज, so 6.26 राउंड हो गया. Then finally we come to this question. In this lab, how many student riders did we examine? तो वो तो 14 ही था, आई थिंक. हाँ 14 था. How many students rode their bikes daily? अब इसमें मेरे को ये बताओ, डेली अगर मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी, एक तो काउंट भी कर सकते हैं, बहुत कम है, बट इसको एक्सट्रैक्ट करके अगर मेरे को नंबर चाहिए तो कैसे करेंगे? स्टूडेंट मैम स्टूडेंट साइकिल फ्रीक्वेंसी इक्वल 1 कर देंगे. इक्वल 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 1 कर देंगे. इक्वल डेली कर देंगे. डेली कर देंगे. करेक्ट करेक्ट. और उससे हमारा एक आ जाएगा. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब इसमें 8 आ जा रहा है, वो वैसे इसमें दिख भी रहा है क्योंकि बहुत छोटा डेटा सेट है. सो यू कैन एग्जामिन लाइक दिस आल्सो. 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑन एवरेज द स्टूडेंट्स रोड अबाउट हाउ मेनी माइल्स ऑन ईच ट्रिप? तो ये तो हम लोग ने देख लिया, 8.26. ठीक है, ये फाइनली हमारा फाइनल कंक्लूजन हो गया. ये वाली फाइल क्लियर हो गई सबको? Yes, ma'am. ओके. यस. अब बाइक डेटा सेट, अब इससे रिलेटेड 1 मिनट और भी है हमारे पास. बाइक आई थिंक यही था क्या? हाँ नहीं, आगे आ गया है हिस्टोग्राम्स और ये सब का. हाँ ये नेक्स्ट फाइल है एक, एज स्टेम ग्राफ्स. अच्छा ये वाले तुम लोग को बताया हुआ है कि नहीं? स्टेम ग्राफ्स वगैरह बताए हैं, स्कैटर प्लॉट वगैरह तुम लोग को आता है कि नहीं आता है बेटा? स्कैटर प्लॉट्स, बॉक्स प्लॉट्स, ये सब पता है कि नहीं? क्या होता है बॉक्स प्लॉट बनाना? हम पढ़ा हुआ है ना? Yes, ma'am. तो इसकी एक और फाइल है आई थिंक. अच्छा टाइम हो रहा है, आज ही कंप्लीट करें, नेक्स्ट में करें? हम नेक्स्ट में कर दीजिएगा. तो चलो फिर अभी अब नेक्स्ट में करते हैं. आज की क्लास यही खत्म करते हैं. आई विल शेयर दिस फाइल ऑल्सो. हाँ नेक्स्ट वाली Yes, जो ma'am. करेंगे एक्चुअली मैं इसके क्वेश्चन शेयर कर दूंगी, तो तुम लोग खुद अटेम्प्ट करके आना, फिर हम लोग सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे. इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ तो सब लोग ठीक से ट्राई करना बेटा. ट्राई डूइंग दिस, तो बहुत जल्दी जल्दी फिर तुम लोग को बहुत अच्छे से आ भी जाएगा प्रैक्टिकली सारी. मेरा मन था कि इस बार सारी लैब्स तुम लोग को ऐसे करा दे ताकि लैब्स तुम लोग की स्ट्रांग हो जाए. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो.